Formal and informal credit. Who gets what? This graph shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. You can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. It means इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि अर्बन एरियाज के लोगों के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इस ग्राफ में गरीब से लेके अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज के जो भी गरीब परिवार हैं उनको जो कर्ज मिलता है 85% कर्ज लोन जो मिलते हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलती है, जबकि इसकी तुलना हम किसी अर्बन एरियाज के अमीर परिवारों से करते हैं तो देखते हैं केवल 10% लोन वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, जबकि 90% लोन्स वो फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। इस तरह की तस्वीर आप रूरल एरिया में भी देख सकते हैं। अमीर परिवार फॉर्मल सोर्सेज से सस्ता लोन ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार कर्ज के लिए उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. इनफॉर्मल सेक्टर से लिए गए लोन आमतौर पे इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है और यह उधार बोरोवर की इनकम को बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और कोऑपरेटिव्स को अपनी एक्टिविटीज़ विशेषकर स्पेशली रूरल एरियाज में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बोरोवर की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सोर्सेज पे कम हो। दूसरा, एक तरफ फॉर्मल सोर्सेज के द्वारा मिलने वाले लोन का विस्तार होना चाहिए और दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि यह लोन सभी लोगों को मिल सके। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. बहुत जरूरी है कि फॉर्मल लोन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो ताकि हर गरीब परिवार चीप लोन का फायदा उठा सके। One solution to this problem is organizing people into self-help group. In a typical self-help group, 15 to 20 members from a neighborhood save regularly to create a savings pool. Members of the group can take small loans from the combined savings and repay the loans with interest that is less than what the money lenders charge. After saving regularly for a few years, a self-help group becomes eligible for a loan from a bank without providing any collateral. The money from the bank loan is used to generate more income and employment opportunities for the group of members. The members of a self-help group make all the decisions jointly and are jointly responsible for the repayment of loans. हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को कर्ज देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस तरह के समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और सेविंग करते हैं। यह लोगों को संगठित करके उनकी बचत पूंजी को इकट्ठा करने पर आधारित है।
इस ग्रुप के लोग छोटे मोटे लोन्स ले सकते हैं। इसमें दिए गए लोन में इंटरेस्ट जो होते हैं वो इंटरेस्ट मनी लेंडर्स के लगाए गए इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा कम होते हैं। कुछ सालों के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स बैंकों से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट में और बिना किसी कोलेट्रल और सिक्योरिटी के। बैंक से मिलने वाले लोन को मेनली लोगों के इनकम को बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स डिसीजंस जॉइंटली मिलकर लेते हैं और किसी भी तरह के रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं।